सभी को दिख रहा है? अरे सर। स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। These are the contents, electronic properties and band theory. Contents are conductors, semiconductors and insulators. What are electronic structure of solids? Band theory. Band structure of metals, semiconductors and insulators. Intrinsic and extrinsic semiconductors. Doping semiconductors, PN junction and superconductors. The classification based on energy band theory of materials. Based on the ability of various materials to conduct current, the materials are classified into three groups. First one is conductors, second insulators, and third one is semiconductors. So what is metal? A metal which is very good carrier of electricity is called conductor. The example are copper, aluminum are good examples of conductor. A very poor conductor of electricity is termed as insulator, like glass, wood, mica, diamond are the examples of insulators. A metal having conductivity which is between conductor and insulator is called semiconductor. The silicon and germanium are the example of semiconductor. This does not conduct current at low temperature, but as when we increase temperature, material behaves as good conductors. सर हाँ, स्लाइड मूव सुनाई दे नहीं रहा हो है? रहा है। स्लाइड मूव नहीं कर मूव? रहा है। स्लाइड मूव। अच्छा, यस सर, अब इस होने मोड में लगा। एक मिनट इसको मैं हटा के एक मिनट स्ट्रेट। ये ठीक है? यस सर। यस सर। ये दिख रहा है सेकंड का? यस सर। ये कंटेंट्स हम डिस्कस यही कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड थ्योरी। ये क्लियर है ना? विजिबल है पूरा? यस सर। Based on the ability of various materials to conduct current, the materials are classified into three groups: conductors, insulator, and semiconductors. A metal which is a very good carrier of electricity is called conductor. Like metal, copper, aluminum, silver, gold are good examples of conductors.
A very poor conductor of electricity is termed as insulator. The glass, wood, mica, diamond are the examples of an insulator. A metal having conductivity which is between conductor and insulator is called semiconductor, like silicon and germanium. These are the examples of these semiconductors. Semiconductor doesn't conduct current at low temperatures, but as when we increase temperature, these materials behaves as a good conductor. In the metals like copper, aluminum, silver, gold, there is no forbidden gap between valence band and conduction band. इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, वैलेंस बैंड इनके बीच का जो गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, दैट इज कॉल्ड forbidden zone. So there is two band overlap. Hence, means in the case of conductors, there is no forbidden zone. मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप रहते हैं, दोनों बैंड ओवरलैप हो जाते हैं. Hence, even at room temperature, a large number of electrons are available for conduction. So, without any additional energy, such metals contain a large number of free electrons and hence called good conductors. इंसुलेटर में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, फॉरबिडन जोन बहुत ज्यादा होता है. सो देयर इज नो कंडक्शन. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. जैसे लकड़ी है, आप कितना भी टेम्परेचर दे दीजिए वो जल जाएगी, लेकिन करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इतना ज्यादा फॉरबिडन जोन होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं सकता. सो इन केस ऑफ सच इंसुलेटिंग मटेरियल देयर एग्जिस्ट लार्ज forbidden gap in between the conduction band and the valence band. Practically, it is impossible for an electron to jump from the valence band to the conduction band. Hence, such materials cannot conduct and called insulator. The forbidden gap is very wide, approximately about 7 electron volt is present in an insulator. For a diamond, which is an insulator, the forbidden gap is about 6 electron volt. So such material may conduct only at very high temperatures or if they are subjected to high voltage. Such conduction is very rare and is called breakdown of an insulator. The other insulating material are glass, wood, mica. Semiconductors. इन दोनों के बीच में, सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा फॉरबिडन जोन होता है, गैप होता है, एनर्जी गैप होता है. इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है. The forbidden gap in such material is very narrow, and such materials are called semiconductors. The forbidden gap is about 1 electron volt. In such materials, the energy provided by the heat at room temperature is sufficient to lift the electrons from valence band to conduction band. थोड़ा सा उसको टेम्परेचर मिलता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है. सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो भी अरेंज होता है KLMN के फॉर्म में होता है. न्यूक्लियस बीच में है, प्रोटॉन बीच में है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है. और ये एनर्जी लेवल्स है.
जैसे KLM है ना, वैसे E1 E2 E3 E4 क्या होता है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो उनके बीच का जो गैप होता है वो कम होता जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, इसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाता है। मतलब E1 और E2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, फिर E2 E3 कम होगा, E3 E4 E4 इस तरह से कम होता जाता है। ये पैटर्न है एनर्जी लेवल्स का। और मतलब एक साथ किसी हम एलिमेंट्स लेते हैं, एटम्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि जो वो एनर्जी लेवल्स दिखता है, अब 10⁻23 एटम्स में उनकी एनर्जी है तो वो आपको अलग अलग लाइन दिखेगा ही नहीं, वो बिल्कुल एक साथ पूरा दिखेगा, बैंड दिखेगा पूरा। तो आगे हम जस्ट डिस्कस करेंगे। Band model. The electronic band structure is an energy scheme to describe the conductivity of conductors, insulator and semiconductors. The scheme contains up two energy bands. One is valence band and there is conduction band. And the energy gap, that is called forbidden zone. मतलब बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो भी है वो that is called forbidden zone. The valence electron, which serves as a charge carrier, are located in the valence band. Valence electron से valence band उसको बोलते हैं. In the ground state, the conduction band is occupied with no electrons. मतलब जो ऊपर वाला conduction band है उसमें इलेक्ट्रॉन तब नहीं है. Between two energy band there is a band gap. Its width affect the conductivity of material. मतलब वो forbidden zone कम ज़्यादा है, उसी पर conductivity डिपेंड करती है. बहुत ज़्यादा है, बता दिया कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो इंसुलेटर है. ये दोनों ओवरलैप कर लिया तो कंडक्टर है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो है वो सेमीकंडक्टर. The energy bands. If we consider a single atom, there are, according to Bohr's model of atoms, sharply distinct energy levels which may be occupied by electrons. जैसे एक एटम का दिखाएंगे तो एक एनर्जी लेवल्स होगा तो वो क्लियरली दिखेगा लाइन वाइज E1 E2 E3 को. If there are multiple atoms side by side, they are interdependent. The discrete energy levels are fed out. In a silicon crystal, there are approximately 10 to the power 23 atoms per cubic centimeter. So that the individual energy levels are no longer distinguishable from each other and thus form broad energy ranges. क्या होता है, जब एक एटम होगा तो उसकी लाइन आपको दिखेगी, दो होगी तो आपको उसी के बराबर वहीं पे दिखेगा दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन. लेकिन ज्यादा एटम्स हो जाएंगे तो दिखेगा नहीं, वो पूरा का पूरा एक ब्रॉड एनर्जी बैंड बन जाएगा पूरा. जैसे ये देखिए, जैसे एक एटम आप देखिए, यहाँ पे एक एटम है तो आप क्लियरली दिख रहा है E1 है E2 E3 है. सेकेंड यहाँ दो लाइन है, यहाँ पे दो लाइन, यहाँ पे दो लाइन है, फिर तीन लाइन है, देखिए दिख रहा है. अब 10⁻23 एटम्स आप इमेजिन करिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो कहाँ दिखेगा? ये पूरा बैंड आपको दिख रहा है, ब्रॉड बैंड है, क्योंकि सब इंटरडिपेंडेंट है, सभी एटम्स की एनर्जी लेवल्स. The width of energy bands depends on how strongly the electrons are bound to them, bound to the atom. The valence electrons in highest energy levels interact strongly with those of neighboring atoms and can be solved relatively easily from an atom. With a very large number of atoms, a single electron can no longer be assigned to a one single atom. मतलब आप सोच नहीं सकते जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, मतलब एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक साथ इतने हो गए तो वहां पर ये पता नहीं चलेगा किसका कौन सा है. तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वहां पर एक पूरा बैंड दिखेगा आपको, जिस तरह से यहाँ पे शो किया गया है पूरा. As a result, energy band of the individual atoms merge to a continuous band, the valence band. ये पूरा कंटिन्यूअस हो गया, मतलब आपको कहीं दिखेगा नहीं यहाँ पर. एनर्जी बैंड्स ऑफ एटम विच आर इंटरडिपेंडेंसी विद अदर एटम. देखिए यहाँ पर एटम का डिस्टेंस यहाँ पर है, ये धीरे 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 ऊपर सारे एटम्स का ये डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन आगे देखेंगे यहाँ पर पूरा पूरा ये एक ब्रॉड बैंड बन जाता है ऊपर इसके. ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है. एनर्जी दिख रहा है ना, E1 E2 E3 E4 सब कुछ. तो एक ये पूरा का पूरा बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन या इसी को एनर्जी गैप बोलते हैं. यदि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर गए तब तो कंडक्टर है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो सेमी कंडक्टर है. यदि इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है. बैंड मॉडल्स ऑफ कंडक्टर्स.
In conductors, the valence band is either not fully occupied with electrons or filled valence band overlaps with the empty conduction band. मतलब जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी है और ये भरा हुआ है या पार्शियल है, बट दोनों ओवरलैप कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंटिन्यूएशन में रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जी गैप तो है नहीं, तो रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. Both states occur at the same time. The electrons can therefore move inside the partially filled valence band or inside the two overlapping bands. In conductors, there is no band gap between the valence band and the conduction band. Band models of insulators. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत गैप रहता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर सकते, बल्कि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा. लकड़ी को आप हीट करिए, कितना भी टेम्परेचर दे वो जल जाएगा, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंड गैप है वहाँ पर. इन इंसुलेटर्स द वैलेंस बैंड is fully occupied with electrons due to the covalent bonds. The electrons cannot move because they are locked up between the atoms. To achieve a conductivity of electrons from valence band, have to move into conduction band. मतलब जब भी कंडक्टिविटी चाहिए, जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव नहीं करेगा, there is no conductivity. This prevents the band gap which lies in between the valence band and conduction. ये मोमेंट कौन रेस्ट्रिक्ट करता है, जो उसका फॉरबिडन जोन है, एनर्जी गैप है. Only with considerable energy expenditure, if at all possible, the band gap can be overcome, thus leading to a negligible conductivity. बहुत कम चांसेस है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन मूव करे. द बैंड मॉडल ऑफ सेमीकंडक्टर, हमने पहले बता दिया सेमीकंडक्टर में क्या, पहले बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इनके बीच में जो फॉरबिडन जोन है वो फॉरबिडन जोन बहुत कम एनर्जी गैप है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से है. मैक्सिमम 7 है, मतलब इंसुलेटर हो गया, 6 पर भी इंसुलेटर है. तो यदि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. यदि आपका इस रेंज में है तो वो उसके नीचे है, तो मतलब इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में सेमीकंडक्टर. Even in semiconductors there is a band gap, but compared to insulator it is too small that even at room temperature electrons from the valence band can be lifted into conduction band. The electrons can move freely and act as charge carriers. In addition, each electron also leaves a hole in the valence band behind, which can be filled by other electrons in the valence band. जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो खाली जगह हो गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको फिलअप कर देगा, फिर खाली होगा. इस तरह से लगातार सर्कल चलना शुरू हो जाता है. These are always pairs of electrons and holes. तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो एक होल क्रिएट करेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा, फिर होल क्रिएट करेगा. इस तरह से चेंज चलता रहता है. सो दैट देयर आर as many negative as positive charges. The semiconductor crystal as a whole is neutral, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होंगे. A pure undoped semiconductor is known as intrinsic semiconductor. जिसमें कोई डोपिंग नहीं है, उस सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक बोलते हैं. डोपिंग हो जाएगा वो एक्सटेंसिव हो जाएगा, मतलब फॉरेन मटेरियल उसमें पड़ जाएगा, इम्प्योरिटी पड़ जाएगा, तो एक्सटेंसिव. Per cubic centimeter there are about 10 to the power 10 free electrons and holes at room temperature are available for the conduction. Since the electrons always assume the energetically lowest state, they fall back into the valence band and recombine with the holes if there is no energy supply. At a certain temperature, an equilibrium is arranged between the electrons elevated to the conduction band and electrons falling back. With increasing temperature, the number of electrons that can leave the band is increased, and thus increasing the conductivity of semiconductor. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है और उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. ये बैंड मॉडल है, जस्ट इसको आप देख लीजिए तीनों का. हमने जैसे कहा था इंसुलेटर में ये इधर देखेंगे बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है. इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, बैंड गैप जिसको बोलेंगे हम, या फॉरबिडन जोन है, बहुत ज़्यादा है. इसलिए ये इंसुलेटर है. इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये है, ये जम करके यहाँ नहीं जा सकता.
सेमीकंडक्टर में ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जंप कर गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ बट जहाँ से गया वो पॉजिटिव हो गया। ये होल पॉजिटिव होल है और ये नेगेटिव चार्ज के, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दो कैरियर्स हो गए। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, खाली हो गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये खाली होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह से लगातार ये कनेक्शन चलता है। कंडक्टर में क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जगह है ही नहीं, जो बैंड गैप था वो है नहीं, दोनों के दोनों क्या है, ओवरलैप है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पूछा जाता है, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के बारे में समझिए। इंट्रिंसिक मतलब बताया गया प्योर होता है, उसमें कहीं कोई डोपिंग नहीं है, इम्प्योरिटीज नहीं है। An extremely pure semiconductor is called an intrinsic semiconductor. On the basis of energy band, just 1 minute. On the basis of energy band phenomena, the intrinsic semiconductors at absolute zero temperature is shown below. यहाँ पे देख लीजिए, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। इट्स बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, पूरा खाली है और ये बैलेंस बैंड भरा हुआ है। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड and some heat energy is supplied to it, some of the valence electrons are lifted to the conduction band, leaving behind holes in the valence band as shown. देखिए ये पूरा खाली है, ये पूरा भरा हुआ है। जैसे आप टेम्परेचर दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, यहाँ से मूव करके ये कंडक्शन बैंड में आ गया, और इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये होल क्रिएट कर देता है। सब दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन इधर गया उतना होल क्रिएट होगा, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो होगा वो सेम होगा, इसलिए पूरा क्रिस्टल जो होगा वो न्यूट्रल होगा। और जब भी एनर्जी जो बैलेंस बैंड होता है, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बैलेंस शेल में होता है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। देखिए ये लोएस्ट एनर्जी बैंड है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, करता है यहीं से करेगा, ये ऊपर होता है। अब एक्सट्रिंसिक बता दिया गया कि इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो एक्सट्रिंसिक हो जाता है। ए सेमीकंडक्टर to which an impurity at control rate is added to make it conductive is known as extrinsic semiconductor. An intrinsic semiconductor is capable to conduct a little current even at room temperature, but it is not useful for the preparation of various electronic devices. Pure form में रहता है। Thus, to make it conductive, a small amount of suitable impurities is added to the material. डोपिंग क्या है, वही है कि आप कोई इम्प्योरिटी मिला दीजिए सेमीकंडक्टर में, तो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डोपिंग। द प्रोसेस बाय व्हिच एन इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी व्हिच इज टू बी एडेड टू ए मटेरियल हैज टू बी क्लोज कंट्रोल ड्यू द प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जनरली वन impurity atom is added to 10 to the power 8 atoms of a semiconductor. Doping means the introduction of impurities into a semiconductor crystal to the defined modification of conductivity. Two of the most important materials, silicons, can be doped with boron, मतलब p type n type डोपिंग समझ सकते हैं, तो जस्ट हम आगे आपको बता रहे हैं डोपिंग का। ये एन टाइप, अभी समझिए कि एन टाइप, एन का मतलब नेगेटिव, एन टाइप क्या होगा, 14th ग्रुप में कार्बन है, सिलिकॉन, कार्बन छोड़ दीजिए, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। सिलिकॉन में यदि हम 15th ग्रुप का फास्फोरस आर्सेनिक को हम डोप कर दें तो क्या होगा कि यहाँ सिलिकॉन में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, हम आर्सेनिक को लेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन डोपिंग। वो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, इसमें फास्फोरस या आर्सेनिक की वैलेंसी 5, 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेगा, वो फ्री रहेगा, एन टाइप। जैसे यहाँ पे फास्फोरस किया गया देखिए, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गया, क्योंकि सिलिकॉन में तो 4 है, तो 4 तो फास्फोरस का हो गया, 1 बच गया इलेक्ट्रॉन। पेंटावेलेंट डोपेंट
has an outer electron more than the silicon atoms. 4 outer electrons combine with our one silicon atom, while the fifth electron is free to move and serves as charge carrier. This free electrons requires much less energy to be lifted from the valence band to the conduction band than the electrons which cause the intrinsic conductivity of silicon as dopant, which emits an electron is known as electron donor. Dopants are positively charged by loss of negative charge carriers and are built into the lattice. Only the negative electrons can move. Doped semi-metals whose conductivity is based on free negative electrons are n-type or n-doped. Due to the higher number of free electrons, those are named as majority charge carriers, while free mobile holes are named the minority charge carriers. सिर्फ आप दिमाग में बैठाए रखिए, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ है, मतलब यदि हम 14 ग्रुप में डोपिंग करते हैं तो वो एन टाइप होगा. एन टाइप का मतलब एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप डोपिंग सेमीकंडक्टर. और पी टाइप में क्या होगा, 14th ग्रुप में हम 13th ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग कर दें. 13 में क्या होगा, बोरान ग्रुप का मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो गैलियम की डोपिंग हम सिलिकॉन में कर दें. एक सिलिकॉन एटम को हटा दें, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, यदि उसको हम हटा दें और हम उसमें एल्युमिनियम या गैलियम की डोपिंग करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है, तो एक होल क्रिएट हो जाएगा. वो जगह पॉजिटिव, उसको बोलते हैं पी टाइप, इसलिए हो जाता है. एक होल जो क्रिएट होता है वो पॉजिटिव है, मतलब एक कम पड़ता है. जस्ट आगे आए, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में जान लीजिए. ये एनर्जी डायग्राम है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रॉन एन टाइप में क्या बताया गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो बहुत ज़्यादा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए वो मूव करता रहता है. A large number of free electrons are available in the conduction band because of the addition of pentavalent impurity. These electrons are free electrons which did not fit in the covalent bonds. तो किस मतलब कोवेलेंट फॉर्मेशन के लगेगा नहीं, 4 चाहिए, 4 तो ऑलरेडी है, एक एक्सेस है वो मूव करेगा. However, a minute quantity of free electrons is available, the conduction band forming whole electron pairs. होल पेयर्स का मतलब होगा, होल का मतलब होता है जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वो जगह खाली है, ये होल कहलाएगा. और ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच पेयर की बात, होल इलेक्ट्रॉन पेयर ये होता है. द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी रिजल्ट्स इन ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर इज इम्पार्टेड टू द सेमीकंडक्टर, मतलब गर्म किया जाए, हीट किया जाए, ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर इज जनरेटेड and as a result a minute quantity of free electrons are available. मतलब कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा, वो मूव करेगा. देखिए एन टाइप फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो किया गया, ये होल है जो क्रिएट किया गया है. क्या होता है, मूवमेंट इस तरह से होने लगता है, ये हो रहा है, ये एन टाइप के लिए. These electrons leave behind holes in the valence band. Here n stands for negative material as a number of free electrons provided by the pentavalent impurity is greater than the number of holes. अब ये देखिए डोपिंग किसकी हो गई, बोरान ग्रुप का, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, किसी के भी होगी. तो यदि हम एक सिलिकॉन को हटा के बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम रख दें तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन 3 होता, तो एक खाली हो गया, ये खाली हो गया इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे ये पॉजिटिव होल कहलाता है, इसलिए पी टाइप है. तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे चला जाएगा, मीन्स इस देखिए इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो ये खाली हो गया जगह, यहाँ खाली हुआ तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के चला जाएगा, वो खाली होगा. इस तरह से मूवमेंट होता रहता है. इन कंट्रास्ट टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डोपिंग विथ फास्फोरस, द 3 वैलेंट डोपेंट इफेक्ट इज एग्जैक्टली द अपोजिट. द 3 वैलेंट डोपेंट्स कैन कैच एन एडिशनल आउटर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन वो अपने पास खींचेगा, thus leaving a hole in the valence band of silicon atoms. Therefore, the electrons in the valence band become mobile. The holes move in the opposite direction to the movement of electrons.
the necessary energy to lift an electron into energy levels of indium as a dopant नहीं is about only 1%. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, सर मूव नहीं हो रहा है। मूव नहीं कर रहा है? नहीं सर, अभी आया सर। तो टाइम लग रहा है। पी टॉपिक दिख रहा है? पी टाइप मैंने कहा ना कि ये बोरान है। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन जब ये खाली हो गए, 3 वैलेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये खाली हो गया। अब ये खाली, इसको स्पेस भरने के लिए दूसरे सिलिकॉन से यहाँ पहुंचेगा। इस तरह से क्या होगा, लगातार कंडक्शन होता रहेगा। With the inclusion of an electron, the dopant is negatively charged. Such dopants are called acceptors. Again, the dopant is mixed in the crystal lattice. Only the positive charges can move. Due to positive holes, these semiconductors are called p-conductive or p-doped. देखिए दोनों में अलग है। यदि हम 15th ग्रुप की डोपिंग 14th में करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इसलिए n टाइप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होगा तो n टाइप। इसमें क्या 14th में 13th ग्रुप की डोपिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन एक कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये होल क्रिएट है, वो पॉजिटिव होल कहलाता है, इसलिए वो p टाइप कहलाता है। Doped semiconductor are electrically neutral. रीजन क्या है कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। द टर्म्स p and n type to do only refer to the majority charge carriers. ये दिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? नहीं सर, स्लाइड मूव नहीं कर रहा है। स्लाइड अभी 23 पे आया कि नहीं? यस सर, अभी आया। Doped semiconductors are electrically neutral. The terms n and p type dope do only refer to the majority charge carriers. Each positive charge or negative charge carrier belong to a fixed negative and positive charge dopant. N and p doped semiconductors behave approximately equal in relation to the current flow. With increasing amount of dopant, the number of charge carriers increases in the semiconductor crystal. Hence, it requires only a very small amount of dopants. मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत, इम्प्योरिटी बहुत थोड़ी सी इम्प्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, मतलब कंडक्शन के लिए। वीकली डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल कंटेन्स ओनली 1 इम्प्योरिटी पर कितना हो जाएगा, 10 to the power 9 सिलिकॉन एटम्स। सोच सकते हैं एक इम्प्योरिटी सफिशिएंट होती है। High doped semiconductors, for example, contains 1 foreign atoms per 1000 silicon atom. Electronic band structure in doped semiconductor. ये n टाइप का है और ये p टाइप। n टाइप में पहले बताया गया कि कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, तो क्योंकि हम 15th ग्रुप कहलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, लेकिन 13th ग्रुप का रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एक कम होता है। तो यहाँ पे आप एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल दोनों देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डोनर है, ये किसमें, एन टाइप में, ये एक्सेप्टर लेवल है। फ्री होल्स कहाँ से जाएगा, जब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसमें, बोरान में, जो डोपिंग करता है, डोपेंट जो होता है, जो फिक्स डोपेंट है वो कम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, सिलिकॉन से लेगा। और इसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से किसमें जाएगा, जो फिक्स डोपेंट है। डोपेंट इसमें आर्सेनिक मान लीजिए, आर्सेनिक का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पे सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन में तो चाहिए ही नहीं उसको, वो तो ऑलरेडी 4 है। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस होता है तो वो जो जगह वहाँ क्रिएट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और पेयर बनाने के लिए जरूरी का कि एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हटेगा तभी दूसरा हो सकता है। तो आर्सेनिक तो एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा तो एक जगह छोड़ेगा, वो होल होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको परसू करता है, तो लगातार उस तरह से एक चेन बनता रहता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डोपेंट विथ 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स, 5 मतलब 4 सिलिकॉन, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन बचा,
In n-doped semiconductor, there is an electron in crystal which is not bound and therefore can be moved with relatively low energy into conduction band. मतलब कहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन डोपिंग किया गया वो इलेक्ट्रॉन फ्री है. Thus, in n-doped semiconductors, the donor energy levels is close to the conduction band. ये कंडक्शन बैंड है, ये डोनर है, डोनर लेवल बहुत क्लोज होता है. The band gap to overcome is very small. Although the introduction of 3-valent dopant in semiconductor, a hole is available which may be already occupied at low energy by an electron from the valence band of the, इसमें बोल रहा है ये वैलेंस बैंड, यहाँ पे होल है क्योंकि जैसे ही हम आप डोपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है, तो वो हमेशा जिसमें डोपिंग करते हैं जो मटेरियल है उसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसमें. पीएन जंक्शन का मतलब होगा डायोड. डायोड ट्रायोड पढ़ते हैं, ट्रायोड मतलब 3 होता है, डायोड मतलब 2 होता है. पीएन जंक्शन इज द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन 2n एंड p डोप्ड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल. मतलब n और p के बीच के जो होता है वो पीएन जंक्शन, उसी को डायोड बोलते हैं. In this area, there are no free charge carriers since the free electrons of n conductor and the holes of p-doped crystal in the vicinity of interface combine with each other, which means that the electrons fills the hole, and this charge movement is obtained in consequences of concentration gradient. Since there is only a few number of electrons in p area and only few number of hole in n region, the majority charge carriers electrons in n crystal, holes in p crystal. अब पहले समझ लीजिए कि होल की बात जब भी कहा जा रहा है वो पी डोपिंग की बात है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एक्सेस है वो एन टाइप की डोपिंग की बात कर रहा है. और ये पेयर जो है वही आपका पी टाइप एन टाइप जंक्शन डायोड कहलाता है, क्योंकि ये दोनों नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा नहीं. मूव इनटू कंट्रारी डोप्ड सेमीकंडक्टर, ये आपका डायोड का है. ये आप समाप्त यहीं पर हम करते हैं. इसके बाद क्या है, ये वही उसी डायोड के बारे में, पीएन जंक्शन को डायोड बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे है वो जस्ट दिखा रहा है आपको. ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का है, पी और एन टाइप है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से मूव कर रहा है. तो आप देखते होंगे बैटरी में प्लस और माइनस रहता है, ये इस तरह से डोपिंग है. वही सेम चीज यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है. तो बैटरी में देखते हैं प्लस माइनस वही है. ये आप समाप्त समझ लीजिए आज का. ये मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है. इसको मैं अभी आपको भेज दूंगा. हेलो. यस सर. यस सर. इसको मैं अभी भेज देता हूँ तुम लोगों को, इसका जो पीडीएफ कॉपी है. और केवल 6 लोग जुड़े हुए, बाकी कोई है नहीं यहाँ पे. पहले जुड़े थे 6 लोग थे पहले से ही. 6 लोग थे सर स्टार्टिंग से. अच्छा, कोई जुड़ा ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है क्या? ये लोग सभी लोग उसमें नहीं है क्या, क्या टीचमेंट में? चलो कोई बात नहीं, इसी में भेज देता हूँ. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अप्रूवल, कुछ लोग अप्रूवल पेंडिंग में है सर. अरे यार, तो ये लोग तो बोलना चाहिए था ना अप्रूवल पेंडिंग में है. ये सब तो बोलना चाहिए था ना. ये सब हमको तो कोई बताया भी नहीं. एक बार तो चर्चा करते तुम लोग. अप्रूवल में 5 लोगों का दिख रहा है. तो फोन तो कोई कर, सबके पास फोन नंबर हमारा है, किसी ने फोन हमको किया ही नहीं. चलो कोई बात नहीं, मैं इसको भेज देता हूँ उसको. और मेनली जो इंटरनल में टेस्ट में वो डोपिंग है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक बैंड थियरी, ये रहेगा अभी. ठीक. यस सर. यस. यस सर. चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद.